તેઓને ઉદ્ધવજીનો ભેટો થાય છે અને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ વિશે ઉદ્ધવજીને પૂછે છે કે કૃષ્ણ કેમ છે, શું કરે છે. ઉદ્ધવજીને ખબર છે કે ભગવાન સ્વર્ગે સિધાવી ચૂક્યા છે, પરંતુ વિદુરજી ભગવાનના ભક્ત છે અને એટલે મનમાં વિચારે છે કે ભગવાનના ભક્તને ખબર પડશે કે ભગવાન હવે આ ધરતી પર નથી તો એ દુઃખી થશે, એટલે ભગવાન કૃષ્ણના સ્વર્ગાગમનની વાત નથી કરતા. જ્યારે વિદુરજી કહે છે કે મને ભગવાનની, હું તો 36 વર્ષથી તીર્થયાત્રાએ ગયો હતો, એટલે એમણે શું શું લીલા કરી એ બધી જ કથાઓ સાંભળવાની મારી ઈચ્છા છે, તો તમે મને સંભળાવો. હવે આ બાજુ ઉદ્ધવજી પણ ભગવાનના એટલા જ મોટા ભક્ત છે અને એમને યાદ આવી ભગવાનની એ લીલાઓની, એ કથાઓની, એટલે એ કઈ બોલી જ ન શક્યા. એમના નેત્રોમાંથી જળ વહેવા લાગ્યા છે, મન કરુણ થઈ ગયું છે, કઈ બોલાતું નથી અને ભાવ વિભોર થઈ ગયા છે. હે ઉદ્ધવજી, મને કંઈક તો કહો. ઉદ્ધવજી કહે છે, મારા નાથની હું શું વાત કરું. એમણે જન્મ લીધો માતા દેવકીને ત્યાં અને પોતે ઉછરીને મોટા થયા માં જશોમાને ત્યાં. બાલ્યાવસ્થામાં તેઓ ગોપીઓને રાસ રમાડી ઘેલી કરતા, વાંસળીનો નાદ છેડી ગોપીઓને મનને ઘેલા કરતા. એમની વાંસળીના નાદને સાંભળતા જ ગાયો ઘાસ ચરતી હોય તો ઘાસનું તણખું એના મુખમાં હોય અને એ મગન થઈ જાય, ન તો ઘાસ ખાય કે ન બહાર કાઢે અને એ કેવલ ને કેવલ વાંસળીનો નાદ સાંભળે. ગોપીઓ જળ ભરવા જતી હોય, રસ્તામાં વાંસળી વગાડતા એ નાથને જોઈ જાય ને ત્યાંની ત્યાં ઊભી રહી જાય અને કેટલો સમય વીતી જાય એનું પણ એને ભાન ન રહેતું. ભગવાન વાંસળીનો નાદ કરે ને ત્યાં જ પક્ષીઓ આવી નૃત્ય કરવા લાગે, મોર આવી કળા કરીને નાચવા લાગે અને એ અગમ્ય દ્રશ્યને જોઈ અને સર્વ ગોકુળ અને ગોકુળવાસીઓ આ દ્રશ્યોને જોઈ મગન થતા. એ મારા નાથની હું કઈ કઈ લીલાઓ, કઈ કઈ કથાઓ તમને કહું. સંક્ષિપ્તમાં આખા ભગવાનના જન્મથી લઈ સ્વધામ ગમન સુધીની કથા સંભળાવી છે અને ઉદ્ધવજીના નેત્રોમાંથી જળ વહેવા લાગ્યા છે. કારણ કે ભગવાન એ એવા કઠોર છે કે પેલા પ્રીત કરે છે અને પછી છોડીને જતા રહે છે. આ દુઃખને ગોપીઓએ પણ અનુભવ્યું કે પેલા અમારી સાથે પ્રીત કરીને પછી અમને છોડીને જતો રહ્યો, તને અમારા પર દયા પણ ન આવી કે જે ગોપીઓને મેં મારી બનાવી છે, જેની અંદર કેવળ ને કેવળ હું વસું છું અને હવે હું એનો ત્યાગ કરીશ, એને ત્યજી દઈશ તો એની સ્થિતિ શું થશે. એટલે જ કદાચ ભગવાન કૃષ્ણને છલિયો કહે છે કે તું છેતરે છે. तुम कठोर हो कान्हा, तुम कठोर हो, तुम पहले प्रीत करते हो और फिर छोड़ देते हो. क्योंकि कृष्ण के संग रहने का जितना लाभ है, उससे बहुत बड़ी कठिनता ये है कि उसके विरह में अब जिए तो कैसे जिए. तो उद्धव जी ने याद આવી છે ને યાદ વિસરાતી જ નથી. श्याम तारी याद तो विसराए ना, श्याम तारी याद तो विसराए ना. भावनी भावनी पीड़ा वे सहवाना. श्याम तारी वहला तारी कान्हा तारी याद तो
विसराय ना। भोला भावे में करी थी प्रीतड़ी, भोला भावे में करी थी प्रीतड़ी, भोला भावे में करी थी प्रीतड़ी, शहदई ने काढ़जू कोरायना, श्याम तारी याद तो विसराय। हे कान्हा, तू बहुत कठोर है। तू पहले प्रीत करता है, पहले हमसे जुड़ता है और फिर अलग हो जाता है। मैं बावरी तुझसे प्रीत कर बैठी और तू मुझे छोड़ के चला गया। अब तेरे विरह से न तो जीना अच्छा लगता है और ये आस भी है कि एक दिन तू मिलेगा तो न मरना अच्छा लगता। अब तू ही बता मैं क्या करूं? इस मझदार में छोड़ी हुई नाव को कौन सी दिशा दूं? अब तू ही बता। नाव मारी ते मुके मझधार मां, नाव मारी केम छे मझदार मां, नाव मारी ते मुके मझधार मां, दुख ना दरिया हवे सहवाय ना, श्याम तारी याद तो सहवाय ना। श्याम तारी याद तो विसराय ना, श्याम तारी याद तो विसराय ना। हे कान्हा, तू हम गरीब पर ऐसी कठोरता मत दिखा। जैसे चलते चलते पाँव में लगा हुआ कांटा हर पल हर कदम पर चुभता है और याद आता है कि यहाँ पर कांटा लगा है, ठीक वैसे ही हर कदम पर तू याद आता है और तेरी याद का कांटा हर पल दिल में चुभता है। तू हमको मत त्याग। उद्धव जी इस याद से पीड़ित हुए। कुछ क्षण अश्रु बहाकर फिर खुद को शांत किया और फिर विदुर जी को कथा सुनाई। उद्धव जी ने ज्ञान तो दिया, भगवान की कथाएं सुनाई, लेकिन विशेष कथा सुनाने के लिए कहा कि उद्धव जी को कहना, जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव जी को कहकर गए कि जब विदुर जी मिले तो उन्हें कहना कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ, वो आपको ज्ञान उपदेश करेंगे। अब जैसे ही विदुर जी ने ये बात सुनी कि भगवान ने अंत समय मुझे याद किया था, अब सोचिए आप कि जब भगवान जा रहे और भक्त को याद करे और उस भक्त को पता चले कि मुझे भगवान ने याद किया था, उसकी स्थिति क्या है। कोई बड़ा इंसान आ जाए और वो हमारा नाम लेके बुला दे तो भी हम खुश हो जाते हैं कि ले ये मुझे जानते हैं। और यहाँ पर तो परब्रह्म परमात्मा ने याद कर लिया तो विदुर जी तो मगन भय कि भगवान ने मुझे याद किया। ज्ञान उपदेश के लिए विदुर जी को भगवान ने क्यों पसंद किया? बोले भगवान को पता था कि विदुर जी एक सच्चा मणि है, नकली मणि नहीं है।
और सच्चे मणि को पारखना नहीं पड़ता। सच्चा इंसान होता है, पुरुषार्थी होता है, भक्त होता है, उसे पढ़ना नहीं पड़ता, उसके गुण अपने आप व्यक्त हो जाते हैं। आप अड़ोस पड़ोस में रहते हो, सब लोग साथ में। यहाँ पर तो मैंने देखा है जैसे परिवार रहता है वैसे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। अभी इस जमाने में घर की चाबी अगर किसी को पता चल जाए कि यहाँ पर पड़ी है तो दूसरे दिन चोरी हो जाता है घर, और यहाँ पर आपस में एक दूसरे के घर पे चाबी दे के चले जाते हैं। मतलब ये एक भक्त होने का गुण है जो आपका प्रदीप हो रहा है। और ऐसा सब कब होता है? जब आप सब लोग सच्ची भक्ति में और सच्चे मणि समान। एक गांव में सच्चे मणि और नकली मणि राजा को दिया गया। राजा के पास एक बहुत बड़ा मणि था, अब उसकी चोरी ना हो जाए इसलिए राजा ने झवेरी से बोला कि एक और ऐसा नकली मणि बना दे, ताकि हम इस मणि को कहीं और छुपाए और दुनिया वालों को कहे कि हमने असली मणि है वो यहाँ पर रखा है, तो चोरी हो जाए तो भी नकली वाला मणि चोरी होगा। अभी एक असली बनाया, एक नकली बनाया, और हुआ ये कि राजा से दोनों मणि गिर गए। अब दोनों का आबे-हूब एक सा रंग, एक सा वजन, सब कुछ एक सा, डिजाइन एक सी। अब सब सोच में पड़ गई कि इसमें से असली वाला कौन सा और नकली वाला कौन सा। यहाँ तक कि झवेरी खुद नहीं बता पाया कि कौन सा असली और कौन सा नकली। अब राजा परेशानी में आ गया तो उसने पूरे गांव में कहलवाया कि जो कोई इस दोनों मणि को पारख के बताएगा कि ये वाला असली और ये वाला नकली, उसे राजा इनाम देंगे। अब पूरा गांव आया देखने के लिए, तो सब ने देखा लेकिन कोई नहीं बता पाया कि इसमें से असली मणि कौन सा है और नकली मणि कौन सा है। बहुत लंबा वक्त बीता, सुबह से शाम होने को आई, 3-4 बज गए, लेकिन कोई बता नहीं पाया। तो राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया कि इतने सारे लोग हो, कोई एक बात नहीं बता सकती कि कौन सा असली मणि और कौन सा नकली। उतने में एक सूरदास जी निकले। सूरदास जी माने समझते हो सब, दोनों आंखों से जो अंध है। अब सूरदास जी निकले, बोले क्या शोर मचा है, सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? बोले राजा से 2 मणि मिल गए हैं और असली कौन सा नकली कौन सा कोई बता नहीं पा रहा, इसलिए सब लोग आए हैं, जो बताएंगे उसे राजा इनाम देंगे। बोले तो मैं भी प्रयत्न करना चाहूंगा। अभी सब लोग बोले जिसे आंख है वो खुद नहीं बता पाया, आपके पास तो आंख भी नहीं, आप क्या बताओगे? बोले मुझे प्रयास तो करने दो। अरे भाई आपको खाना खाना है तो कोई और रसोड़े पे ले जाता है, आप क्या जाके बताओगे? बोले नहीं मैं बताऊंगा, मुझे ले जाओ। अब सूरदास जी ने जिद की, उतने में राजा का ध्यान गया वहां पे और बोला कि क्या हुआ है वहां पर, क्यों शोर है? बोले सूरदास जी को भी बताना है कि कौन सा असली और कौन सा नकली। ठीक है भाई, अब सबने प्रयास कर लिया है तो इनको भी एक को कर लेने दो। सूरदास जी को लाया गया जहां पर मणि रखा था और बोला कि बताइए कौन सा असली और कौन सा नकली। सूरदास जी ने कहा दोनों मणि को मेरे एक एक हाथ में रख दो। अब रखा, एक में असली एक में नकली, लेकिन पता नहीं है कौन सा असली कौन सा नकली। सूरदास जी ने दोनों मुट्ठियां बंद की और बंद करके फौरन बोल दिया कि ये वाला असली है, ये वाला नकली है। रुकिए, अभी सार कहीं और है। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो पूछा कि आप कैसे बता सकते हो कि यही असली हो यही नकली है? बोले आप लोगों ने एक तो यहाँ पर जो बड़ा ग्राउंड है, मैदान है, वहां पर ये कार्यक्रम रखा और यहाँ पर इतनी धूप है, 3 बजे है और धूप के चलते जो कांच होता है वो तप जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन जो असली मणि है वो तपता नहीं, वो ठंडा रहता है। तो जो गर्म था वो नकली, जो ठंडा था वो असली। अब इसे हमारे जीवन के साथ जोड़िए कि जीवन में धूप तो तपेगी ही,
पर हम अगर गर्म हो गए तो नकली मणि, पर अगर वैसे के वैसे ही शीतल बने रहे तो असली मणि। तो विदुर जी असली मणि थे, क्योंकि कोई भी कार्य करे कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा बहुत बखेड़ा हो ही जाता है। पर उस समय हम अगर उसने एक गाली दी और 3 हम देंगे, फिर वो 5 देगा, फिर ये हाथ उठाएगा, फिर वो लाठी उठाएगा, फिर ये छुरी उठाएगा, वो बंदूक उठाएगा, तो अंत कहाँ आएगा? 2-3 हत्याएं हो जाएगी। और उसी जगह उसने एक गाली दी और आप कह दो कि भाई तुझे मुझे गाली देने से अच्छा लगता है, 2-3 और दे दे, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो बेचारा गाली देना भूल जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए विदुर जी को ज्ञान उपदेश के लिए पसंद किया गया है।